Good evening, everybody. I hope you are able to hear my voice clearly. Okay. In the previous class, we were discussing some common terms associated with concave mirrors or rather spherical mirrors. तो उसमें हमने बच्चे टर्म्स जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्फेरिकल मिरर से वो हमने डिस्कस किए थे. And then we talked about rules for image formation in concave mirror. कॉनकेव मिरर में जो रूल्स यूज होंगे इमेज फॉर्मेशन के वो हमने डिस्कस किए थे. सो आई विल जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन इट टू यू. विल जस्ट ब्रीफली go through it once again and then we'll proceed towards drawing ray diagrams today. Okay, आज हमें ray diagrams बनाने हैं. I hope you have your scale and pencil with you. तो वो useful होगा when you draw ray diagrams. So the first rule is light ray which is parallel to principal axis will pass through focus. तो बच्चे this is actually the rule which is derived from defining the focus of concave mirror. कोई भी light ray जो parallel जाएगी principal axis के after reflection वो कहां से pass होती है? It will pass through focus. Okay, light ray parallel to principal axis after reflection it will pass through focus. This is our first rule. Then second rule is any light ray through focus will become parallel to principal axis after reflection. If you have any light ray which is moving through focus से जो आएगी वो क्या होगी? It will become parallel to principal axis after reflection. Reflection के बाद वो light ray क्या हो जाएगी? Parallel हो जाएगी after passing through focus. Then third is light ray through center of curvature retraces its path. Any light ray which passes through center of curvature will retrace its path. यानी angle of incidence इस केस में 0 डिग्री हो जाता है तो angle of reflection भी 0 होगा. So your light ray will retrace its path. This is the third you can say rule for image formation. Okay. Fourth is light ray which is incident at pole. Any light ray which is incident at pole is reflected at same angle. तो अगर कोई भी लाइट रे पोल पे आती है जितने एंगल पे उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी. ओके, तो these are the 4 rules that we will be using. Okay, तो बच्चे will be proceeding towards image formation in concave mirrors. अब बच्चे when you talk about image formation में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. There will be different positions. हम अलग अलग पोजीशंस करेंगे जैसे इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट यू विल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज एट इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. अलग अलग पोजीशंस बनेंगी. ऑलराइट, तो वी विल बी ड्राइंग इमेजेस फॉलोइंग द रूल्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. एटलीस्ट हम 2 रूल्स यूज करेंगे. अगर आपको कोई भी इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलेगी you have to use at least 2 rules to form an image. Then once an image is formed, आपको क्या करना है उसके बाद उसके characteristics भी लिखने हैं. Once the image is formed, you have to also write its characteristics. Okay, तो ये चीजें हैं बेसिक जो हमें याद रखनी है. Okay, so बच्चा the first position that we will be picking up for image formation is you will say object is at infinity. Okay, this is the first position. Object is at infinity. अब अच्छा, what do we understand by the term infinity? Infinity means object बहुत दूर है concave mirror से. Okay, object is at infinity. This is our first position for concave mirror. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज से बहुत दूर है. ओके, मिरर से बहुत दूर है, सॉरी, ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो आई जस्ट ओके, आई जस्ट पिक अप अ मिरर. ऑलराइट, ओके. बच्चे हाउ विल यू ड्रॉ दिस इमेज? आप कैसे ये इमेज बनाओगे? बच्चे ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज अ स्केल. आपको स्केल यूज करना पड़ेगा. ठीक है, यू विल हैव टू यूज अ स्केल. और स्केल हम कैसे यूज करेंगे?
that day I told you we will draw a normal or perpendicular to the concave mirror just passing from the pole. और बच्चे ये जो डिस्टेंस होगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यू विल मेजर दिस विद अ स्केल. लेट्स से आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर पे रखा पोल के, तो एग्जैक्टली मिड में आप क्या मार्क करोगे? फोकस. ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ. अगर आप स्केल के साथ ड्रॉ करोगे तो आपकी जो इमेजेस बनेंगी दे विल बी प्रॉपर. ऑलराइट, तो हमें बनाना है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. दैट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से बहुत दूर है. तो बच्चे इस केस में क्या होगा? whenever object is at infinity, what is going to happen? बच्चे you will pick, what you will be doing? You will be picking up 2 light rays. आप 2 light rays लोगे. Okay, this is my first light ray. This is your second light ray. Okay, वैसे तो बहुत सारी light rays आएंगी, but we will be just denoting 2 light rays. And बच्चे these 2 light rays they are coming parallel to principal axis. ये दोनों light rays principal axis के parallel आ रही हैं. तो बच्चे what is going to happen? They are going to pass. What is going to happen? They are going to pass through focus. Any light ray which is parallel to principal axis, it has to pass through focus. बच्चे मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूं कि फोकस मेरा इतने डिस्टेंस पे है. अगर आप स्केल यूज कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस मेजर करके फोकस बनाइए and then you will make the ray diagram. Okay, so this is my focus. All right, any light ray which is parallel to principal axis, it will pass through focus. Here we have object at infinity. हमारा जो object है किधर है? Object is at infinity. So we will take 2 light rays. We will take 2 light rays which are parallel to principal axis. After reflection, you will pass it through focus. Okay. Always remember to show the direction of light rays. Light rays की direction जरूर show कीजिए. Don't forget to draw that. Okay. तो बच्चे यहाँ आपके फोकस पे इमेज बन रही है. अब बच्चे how will you write its characteristics? आपको इसके characteristics भी लिखने हैं. Object is at infinity. इमेज बन गई. इमेज किधर बनी है? Image is formed at focus. Okay. So what are the characteristics of this image? Characteristics of this image. ओके, आपको एक बार मैं हिंट दूंगा फिर आप आराम से लिख पाएंगे. बच्चे बिकॉज सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है इमेज किधर बनी है. इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. ओके, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. आप पोजीशन बताओगे और किस टाइप की इमेज है. बच्चे दिस इज अ रियल इमेज. व्हाई दिस इज अ रियल इमेज? क्योंकि बच्चे ये इमेज जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फॉर्म हो रही है. ओके, सो दिस इमेज इज रियल. दिस इमेज इज रियल. ऑलराइट, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस. सेकेंडली, यू विल टेल अबाउट इट्स साइज. अब बच्चे क्योंकि फोकस पे फॉर्म हो रही है, बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज है. ओके, सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी the size. You will say the image is point sized. Image is point size. क्योंकि बच्चे जस्ट फोकस पे ये बनी है, इधर ही बनेगी. इमेज इज पॉइंट साइज. और यू कैन राइट हाईली डिमिनिश्ड. बच्चे हाईली डिमिनिश्ड का क्या मतलब है? साइज बहुत छोटा है. ओके, और बच्चे ये हम इमेज देख सकते हैं अगर हम लाइट रे फोकस करें सन से. कॉनकेव मिरर पे लाइट रे को फोकस करें सन से, तो आपकी जो पॉइंट साइज इमेज बनेगी वॉल पे या स्क्रीन पे, वो किसकी होगी? इट वुड बी इमेज ऑफ सन. तो सन का साइज तो बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट साइज बहुत बड़ा है, पर जो उसकी इमेज बनी है बहुत छोटी बनेगी. ओके, सो इमेज इज पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड. ऑलराइट, तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हर एक इमेज के साथ लिखने हैं. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. अब चलते हैं बच्चे सेकंड पोजीशन पे. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बच्चे सेकंड पोजीशन इज यू विल कीप ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, द सेकंड पोजीशन इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर.
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चे, मैंने आपको उस दिन बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिनोट करते हैं। वी डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, ये चीज याद रखनी है। ऑल राइट, ओके, सो आई विल जस्ट प्लेस माय मिरर हियर। ओके, दिस इज माय कॉनकेव मिरर। आई विल जस्ट रिड्यूस इट साइज अ बिट, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, इमेजेस हमारी बड़ी बन रही हैं। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। अब अच्छा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, you have to exactly place center of curvature and focus correctly। आपको equal distances पे रखने हैं। all right, so okay, Anisha is saying we can see the diminished image of sun with help of microscope। अच्छा, माइक्रोस्कोप से देखने की क्या जरूरत है सन की इमेज, टेलीस्कोप से इतनी क्लियर इमेजेस मिल रही हैं हमें। वी हैव वेरी गुड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, आप सन का सरफेस सब कुछ देख सकते हो। माइक्रोस्कोप में क्या करना है देख के, यू वांट टू मैग्नीफाई इट, उसको अगर सही तरीके से देखना टेलीस्कोप से देख लो, यू हैव टेलीस्कोप अवेलेबल, माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, तो बच्चे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज द पोल। लेट्स से आपने स्केल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को 10 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया। ओके, लेट्स से दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, यू हैव टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट नाउ। ऑलराइट, ओके, आई विल जस्ट चेंज दिस कलर। ऑलराइट, और यहां मैं ओके डैश लाइंस हटा देता हूं। ऑलराइट, let me use okay this one। all right, so just beyond C। okay, तो यहां मेरा ऑब्जेक्ट है। okay, instead of drawing this I think all right, I'll simply pick a line that would be better। okay, let's say this is our okay ज्यादा बड़ा बन गया है। let's say this is our object। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बच्चे इसके ऊपर एक एरो हेड भी बनाएंगे आप, यू विल प्लेस अ एरो हेड लाइक दिस। अपराइट ऑब्जेक्ट रखना है हमेशा, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 2 लाइट रेस, और ये लाइट रेस दोनों आप उसके कहां से स्टार्ट करोगे, हेड से। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट लाइट रे। तो बच्चे आपको एग्जैक्टली क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस बनाना है, तो आपकी लाइट रे वहीं से पास होगी। ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर फोकस। ओके, गलत बन गया है थोड़ा सा, आपको सेंटर में बनाने की कोशिश करनी है। ओके, ऑलराइट, ओके, लेट्स से दिस इज आवर फोकस, ये हमारा फोकस है। तो बच्चे एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, वो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ओके, आई जस्ट एक्सटेंड इट अ बिट, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट you can say rule, any light ray which is parallel to principal axis it will pass through focus। अब अच्छा दूसरा हम रूल क्या यूज कर सकते हैं, any light ray through focus after reflection। okay, after reflection। okay, देखो अब अच्छा इधर क्या हुआ है, मेरा रे डायग्राम गलत हो गया है। मुझे चाहिए जो इमेज है मेरी बचे वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आनी चाहिए। ओके, देखो मेरे से गलती हो गई है। अब क्योंकि मैं ये इमेजेस बनाता रहता हूं तो मुझे आइडिया हो गया कि मैंने गलती कर दी है। आई वॉन्ट माई इमेज टू बी समवेयर हियर, और ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज भी छोटा होना चाहिए। तो हो सकता है मैंने जो फोकस रखा है ना वो गलत रख दिया है। ऑलराइट, माय फोकस इज रॉन्ग। चलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी। ओके, I'll take the light ray which is parallel to principal axis। okay, then all right, I will try to pass it through focus। okay, चलो यहाँ के करीब होगा सेंटर, if I am not wrong
then through focus, okay, then okay, चलो अब बच्चे जहां ये लाइट रे मीट होंगी यहां आपकी इमेज बनेगी, हियर इट इज, यहां आपकी इमेज बनी है, ऑलराइट। और बच्चे एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो इमेज बनेगी फॉर दिस पोजीशन इट शुड बी स्मॉलर, इट शुड बी स्मॉलर, ओके। आलोक, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मेरी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही बननी चाहिए, जैसे मैंने अब बनाई है। पहले मेरी इमेज जो थी बहुत आगे जा रही थी और इमेज का साइज भी बड़ा हो रहा था, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। अगर आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बन रहा होगा, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो यहां मैं फोकस डाल रहा हूं, दिस इज माय फोकस। और बच्चे जहां ये लाइट रे मीट होंगी यहां आपकी इमेज बन रही है, दिस इज योर इमेज फॉर्म, ओके, ऑलराइट। लेट मी जस्ट चेंज अब, ओके, ये आपका फोकस बन गया, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, लेट्स एक्सटेंड दिस अ बिट ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। ये लाइट रे ऐसे आगे जा रही है, ओके, और ये लाइट रे ऐसे आगे जा रही है। जहां ये क्रॉस करेंगी वहां आप इमेज बनाएंगे, वहां आप इमेज बनाएंगे, ओके ओके। हाउ टू फाइंड इमेजेस इन्वर्टेड और इरेक्ट? देखो बच्चे, ऑलवेज रिमेंबर रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होगी, उल्टी बनेगी। और अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज विल बी अपराइट, ओके। अगर रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होगी, अगर वर्चुअल इमेज है तो वो अपराइट होगी, ओके। अर्चिशा, दूसरी रे सी से जाएगी शायद। बच्चे, हाउ विल यू टेक इट फ्रॉम सी? सी से ले जा तो सकते हो, बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ओके, मेरे पास मिरर छोटा पड़ जाएगा। बच्चे प्लीज ड्रॉ इट विद अ स्केल, आप स्केल से बनाइए, ठीक है। मेरा जो रे डायग्राम ना गड़बड़ हो रहा है, मैंने क्योंकि स्केल यूज नहीं किया है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ करीब होना चाहिए, फिर भी मेरा रे डायग्राम गलत बन रहा है, ओके। तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आनी चाहिए। बच्चे अगर आप स्केल यूज करोगे तो आपका रे डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। अर्चिशा, यू कैन इवन टेक इट फ्रॉम सी, तब भी आपका सही बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए, आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे फोकस से ले जाओ, चाहे पैरेलल ले जाओ, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, चाहे पोल पे ले जाओ। पर बच्चे ये जो मैंने दो यूज किए हैं रेज, ये सबसे कॉमन है, ये सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहां मेरी इमेज बन रही है, हियर माय इमेज इज फॉर्म, जहां जहां आपकी दोनों लाइट रेज मीट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहां आपकी इमेज बनेगी, ओके। ये चीज याद रखनी है, ऑलराइट। ये आपकी इमेज है। I'll just draw a arrowhead, ओके। इमेज मेरी उल्टी बनेगी, ओके, इमेज मेरी उल्टी बन रही है, ठीक है। तो बच्चे आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज छोटा होना चाहिए, और आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, ओके। ये चीज याद रखनी है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके। सो दिस विल जस्ट राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस इमेज? बच्चे दिस इज अ रियल इमेज, वो तो पता ही लग रहा है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनी है। सो द फर्स्ट इज, इट इज formed between, it is formed between C and F, okay, it is formed between C and F, it is formed between center of curvature, that is C and F, focus। बच्चे आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाओगे आपकी इमेज जो है फोकस से शिफ्ट होगी। फॉर इंफिनिटी, जब पोजीशन बहुत दूर है ऑब्जेक्ट की, ओके, तो इमेज बनती है फोकस पे। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे आपकी इमेज फोकस से शिफ्ट होगी, ओके। सेकेंडली, इट इज रियल इमेज, इट इज रियल इमेज एंड इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है बच्चे? उल्टी बनेगी, ऑब्जेक्ट जैसे रखा है उससे उल्टी बनेगी। और बच्चे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इट इज रियल
it is real and okay, it is real and inverted image. वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं होती, पर चलो क्योंकि आप अभी लिखना शुरू कर रहे हो तो इट वुड बी यूजफुल, आपको याद ही हो जाएगा कि रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड लिखना है. इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. ओके, व्हाट अबाउट साइज ऑफ इमेज? इमेज का साइज भी बताना है बच्चे. इवन दो मेरे ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, पर अगर आपने स्केल यूज किया होगा तो आपकी इमेज काफी छोटी बनी होगी ऑब्जेक्ट से, आपको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे. ठीक है, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इमेज साइज इज स्मॉलर. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इमेज साइज. इमेज साइज इज स्मॉलर. इमेज साइज इज स्मॉलर. Image size is smaller than the object. ठीक है, तो बच्चे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पोजीशन के लिए. ओके बच्चे, इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? इज दिस क्लियर? ओके, ऑल राइट. चलो अब बच्चे लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पोजीशन. हमने दो पोजीशंस बना ली हैं, अब थर्ड पोजीशन पे चलेंगे. वी हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब बच्चे आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी. व्हेन यू कीप ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, image will be also formed at center of curvature. All right, this is our third position, object at center of curvature. Third position, object at center of curvature. इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ये चीज याद रखनी है, और सेम साइज की बनेगी. ओके, सो दिस पोजीशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बोर्ड एग्जाम में बोला जाएगा कॉनकेव मिरर के लिए किस पोजीशन पे इमेज का साइज सेम होता है, तो बच्चा उसका आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आपसे पूछा जाएगा फॉर विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज इज सेम, सो आंसर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट, आई जस्ट कीप माय मिरर हियर. ओके, ये मेरा मिरर आ गया है. ऑलराइट, चलो अब ड्रॉ करके देखते हैं. आर इमेज हैज टू our object has to come at center of curvature. चलो अब तो यहां हम अपनी मर्जी से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लेके आना है. ओके, तो बच्चे ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. ऑलराइट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट. इसका एरो हेड से हम बना लेते हैं. ऑलराइट, अब बच्चे आपको कोशिश करनी है कि लाइट रे जब फोकस के थ्रू जाए तो इधर. ओके, आई नीड दिस. तो थोड़ी सी चीटिंग अब मुझे फिर करनी पड़ेगी, मेरे पास स्केल नहीं है. आप सही बना सकते हो बिल्कुल. ओके, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, इट विल पास थ्रू फोकस, तो फोकस सेंटर में रखें. तो ऑलराइट, तो ये मान के चलते हैं इधर, ये आ गया. इधर से सेम साइज की इमेज बनेगी. दूसरा बच्चे, यू कैन यूज लाइट रे थ्रू फोकस. लाइट रे थ्रू फोकस, it will become parallel to principal axis. ओके, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करूंगा. ऑल राइट, एक्सटेंड हो गया. ओके, तो बच्चे आपकी जो इमेज है ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी चाहिए. अब यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू, ओके, मुझे ये मिटानी है. ऑल राइट, तो मुझे थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा रे डायग्राम, ताकि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरी इमेज बने. ओके, यहां है. ओके, आई हैव ट्राइड कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बने. ओके, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है. ऑलराइट, देखो. ओके, लेट्स, I'll pick this from here. यहां से पिक करता हूं और फोकस पे जाता हूं उल्टा. आपको बच्चे ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर आप स्केल यूज कर रहे हो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, मुझे दिक्कत होगी, मेरे पास स्केल नहीं है. देखो मेरी इमेज थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है. चलो अभी काम चला लेते हैं. आपकी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बननी चाहिए. बच्चे ऐसे मेरी टेढ़ी बन रही है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए आपका. इट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, ऑलराइट, इसके लिए एक और तरीका है. चलो हम क्या करते हैं, पहले ही इमेज नीचे ले आते हैं ऐसे.
ऐसे करके देखते हैं। ओके, थोड़ा सा। ओके, ओके, मुझे थोड़ा सा इसको, ओके, यहाँ बन गई है मेरी इमेज, पर ये थोड़ी सी बाहर चली गई है ऑफ। ओके, अब इसको हम करते हैं। ओके, फ्री हैंड नहीं जाना है मुझे, मुझे ऐसे जाना है। ओके, ऑल राइट। ओके, नाउ आई थिंक आई विल बी एबल टू। ओके, चलो, मैंने थोड़ा सिस्टम को फूल कर दिया, अब ये ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी? इट विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ, वहीं बनेगी। ओके, और बच्चे ये आपका फोकस हो गया, दिस इज आर एफ। ठीक है, हमने इमेज कैसे बनाई है? हमने दो लाइट रेज ली, पैरेलल लाइट रेज जा रही थी, सॉरी एक लाइट रे जो पैरेलल आई वो फोकस से गई, और जो एक फोकस से आई वो पैरेलल हो गई। ओके, एंड दे मीट एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चे यहाँ रियल इमेज बनी है, और जो इसका साइज है, साइज एग्जैक्टली सेम है लाइक दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह इसका जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो बच्चे आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर, व्हाट इज आर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? क्या लिखेंगे हम? Okay, what is our first characteristic? The first characteristic is image is formed at center of curvature. Image is formed at same position as the object. जहां मेरा ऑब्जेक्ट था, ओके, वहां ही मेरी इमेज बनी है, दैट इज एट सी। कहां बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। सेकेंड पॉइंट इज what about size and its nature? Okay, image is real, image is real and of same size as the object. Image is real and of same size as the object. बच्चे ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगी? ड्रॉ इट विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम बना के आपको उसकी पोजीशन दिखानी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पोजीशन पे। हम है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। वी हैव टू कम बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, दैट वुड बी आवर फोर्थ पोजीशन। ओके, फोर्थ पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट की कहां है? Object is between, okay, object between C and F. Object is between C and F. That means object को कहाँ रखना है? हमें object को रखना है center of curvature और focus के बीच में। We have to keep object between center of curvature and focus. बच्चे अगर आपको अब समझ आ गया है हम रे डायग्राम्स कैसे बना रहे हैं, तो आप खुद भी बना सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, बनाते जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाओ। ओके, दिस इज आवर फोर्थ पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो बच्चे अब मुझे ऑब्जेक्ट रखना है सी और एफ के बीच में। अब बच्चे यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जब आप एग्जैक्टली सी पे रख रहे हो, जब आप एग्जैक्टली सी पे रख रहे हो तो इमेज भी सी पे बनी है। अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले आओगे तो इमेज कहां जाएगी? बच्चे इमेज शुड शिफ्ट बियॉन्ड सी। अब आपकी जो इमेज बनेगी इट शुड शिफ्ट बियॉन्ड सी। इस तरीके से लॉजिक डेवलप करना है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे। अगर आप बियॉन्ड सी आते हो तो ऑब्जेक्ट फोकस से शिफ्ट होकर सी की तरफ आने लगती है। आप सी पे आ जाओ, सी पे इमेज बनेगी। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले जाओ तो इमेज कहां जाएगी? इट विल बी बियॉन्ड सी। और अब बच्चे आपकी इमेज का साइज भी बड़ा होगा, योर इमेज साइज विल ऑल्सो इंक्रीज। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब आपका इमेज साइज भी बढ़ेगा। ऑलराइट, तो बच्चे वी हैव टू कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, सो चलो
लेट्स से दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सो आई विल टेक, ओके लेट मी फर्स्ट क्विकली, ओके ऐसा करते हैं, let me take a light ray which is parallel to principal axis. Okay, let's say this is our focus. यहां से मैंने पास की लाइट रे, थोड़ी सी एक्सटेंड करके ले जाते हैं. ओके, अब अच्छा आपके पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन क्या है? यू कैन पास दी लाइट रे पैरेलल एंड देन टू फोकस, थ्रू फोकस एंड पैरेलल. चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. अब दूसरा एक लॉ यूज करके देखते हैं. एट पोल, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करिए. ओके ऑल राइट. तो लेट्स से यहां आपकी इमेज बनी है. I'll just increase this in length. ओके ठीक है. तो बच्चे हमने क्या किया है, लाइट रे एट पोल, इमेज जो है इधर बनेगी. ओके अब बच्चे इसको जरा हम बना के देखते हैं. लेट्स स्नैप इट थ्रू. देखो आपकी जो इमेज का साइज है बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए हो, तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी बननी चाहिए. ठीक है, एंड दिस इमेज शुड बी बियॉन्ड सी. ओके सिमरन, व्हाई नॉट सेकंड रे फ्रॉम फोकस? बेटा फोकस से ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक इट फ्रॉम फोकस. मैं बच्चे क्यों ये रूल यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, फिर मेरी इमेज गड़बड़ बन जाएगी. आपके पास स्केल है, आप फोकस से लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. आपकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बननी चाहिए. इज इट क्लियर सिमरन? आई डोंट हैव स्केल, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं तीसरा रूल यूज कर रहा हूं. ऑलराइट, चलो अब इसकी हम डायरेक्शंस दिखाते हैं. ये लाइट रे पैरेलल आई, passes through focus, light ray at pole reflects at same angle. ओके तो बच्चे यहां मैंने फोकस बनाया, यहां मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा. अप्रॉक्स मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? समवेयर हियर. दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके एंड दिस इज माय फोकस. कोशिश मैंने की है इक्वली रखूं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है. ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ. अगर आप फोकस से भी लेके जाओगे तब भी आपकी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ही बनेगी. बच्चे यू कैन इवन यूज लाइट रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, पर मेरा मिरर छोटा है ना, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा. अगर मेरी ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा छोटा रखा होता तो मैं इसको रिट्रेस करता, तब भी वो बियॉन्ड बनेगी. आप बच्चे स्केल के साथ ट्राई करके देखिए. सिमरन ट्राई इट विद स्केल. आप चारों रूल्स लगा के देखिए, आपकी इमेज जो है वो सही जगह पे बननी चाहिए. ओके आकृति, टू मेक अ परफेक्ट रे डायग्राम यू डोंट नीड कंपास. कंपास की जरूरत नहीं है, पर हाँ जो आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो उसको थोड़ा परफेक्ट रखने की कोशिश करा करो. और बाकी बच्चे आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा. हाँ लाइट रेस को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फोकस आगे पीछे कर लो ताकि आपका इमेज उस हिसाब से बन जाए. ये हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है. ऑल राइट, तो बच्चे यहां हमारी इमेज बन रही है, इट इज बियॉन्ड सी. ओके अब देखो यहां आपकी इमेज बन गई, दिस इज आवर इमेज फॉर्म्ड. ऑल राइट, तो बच्चे इट इज बियॉन्ड सी और इसका साइज देखिए बड़ा है. नाउ यू आर गेटिंग बिगर इमेजेस. अब बड़ी इमेज बनेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा you will get bigger images. तो बच्चे यहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक है? what is the characteristic here? यहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? okay number 1, image is formed beyond C. image is formed, image कहाँ बना है? image बना है beyond C. okay image is formed, image is formed beyond C. ओके इमेज जो है C के बियॉन्ड बना है. ऑल राइट, द फर्स्ट थिंग ये चीज याद रखनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C. सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बनेगी इमेज, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ गया है? Our object has come between center of curvature and focus.
हाँ जी सिमरन। सर इसमें एक रे तो पैरेलल जाएगी, बाकी जो दूसरी रे है उसकी 3 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? आप बच्चे क्या कहते हैं इसको, पहला जो है आप लाइट रे पैरेलल लेके फोकस में से गई, दूसरी फोकस से लेके जाओ उसको पैरेलल करो। थर्ड इज जितने एंगल पे पोल पे लाइट रे स्ट्राइक करेगी उतने एंगल पे उसको रिफ्लेक्ट करना है। फोर्थ इज अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, जस्ट टचिंग द ऑब्जेक्ट, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। पर बच्चे पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जहां आपकी इमेज बन गई है ना वहीं बनेगी। जस्ट यूज द स्केल टू गुड इफेक्ट। अगर स्केल अच्छी तरह यूज कर रहे हो तो फिर इमेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वहीं बननी है। करके देखिए। ऑलराइट, ओके ओके। सी आतिया, इज देयर एनी नीड टू मेंशन विच रूल इज यूज्ड? बच्चे जब रे डायग्राम बनाना है तब तो हम रूल ही यूज करके रे डायग्राम्स बना रहे हैं ना, तो वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं। जनरली हम लाइट रे पैरेलल लेके जाते हैं या फोकस के थ्रू लेके जाते हैं, पर आपकी मर्जी है, आप कोई और रूल भी यूज कर सकते हो, पर लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, अनलेस इट इज आस्क्ड कि तुमने कौन से दो रूल यूज किए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इमेजेस फॉर्म्ड एट सी, सॉरी इमेजेस फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ऑलराइट, इट इज अ रियल इमेज, रियल इमेज एंड इट इज इन्वर्टेड, और इसका साइज क्या है, बड़ा है, सो इट इज मैग्निफाइड। साइज इज, yes Navya, you are correct, focus is between C and P, exactly at the center। अगर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फोकस किधर रखोगे आप, एग्जैक्टली इन बिटवीन, दैट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। P और C के बीच में रखना है फोकस। नव्या, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर नव्या? Okay, all right, chalo, image is formed beyond C, this is our first rule। Second, sorry, characteristic, second, it is real image, image formed is real, image is real, it is real image, real and inverted image। बच्चे रियल इमेज वैसे इन्वर्टेड ही होती है, पर आप लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज रियल एंड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कई बार आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि लिखिए इन्वर्टेड है या अपराइट, पर बच्चे इट इज एक्चुअली अंडरस्टूड कि अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही है, क्योंकि रियल इमेज कभी अपराइट नहीं होती, वो हमेशा उल्टी बनती है। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड इज इमेज इज ऑफ लार्जर साइज, इमेज इज ऑफ लार्जर साइज। बच्चे जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, अगर आप ध्यान से देखो। ओके, हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हो इमेज बढ़ता जा रहा है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली सेम साइज की बननी चाहिए इमेज। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए तो इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हमें कहाँ आना है, यू हैव टू कम एट फोकस, दिस इज आवर फिफ्थ पोजीशन। आई हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट, I have to place object at focus, that is my fifth position। हाँ जी आकृति। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, जो अभी आपने ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ बताया सर, उसका रे डायग्राम मुझे समझ में नहीं आया सर। आपने पहले उसकी पैरेलल से लाइट पास, पहले लाइट रे पैरेलल से निकाली, लाइट रे पैरेलल निकाली फोकस से, फिर बचे मैंने पोल पे ले गया लाइट रे, जितने एंगल पे लाइट रे पोल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने ये दो यूज किए हैं। आप बच्चे क्या कर सकते हो, आप फोकस के थ्रू ले जाके रिफ्लेक्ट करके पैरेलल कर लो, आप ये रूल भी यूज कर सकते हो। सर हम जो हमने सर जो पोल पे रे, जो हमें लाइट पोल पर पास किया है सर, हम उसको फोकस और पोल के सेंटर में भी एक बिटवीन में कर सकते हैं क्या? बच्चे आप बोल रहे हो कि लाइट रे जो पोल पे जा रही है, बच्चे लाइट रे जो पोल पे जाती है ना,
जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। सर हम उस या लाइट हाँ, सर हम उस लाइट को सर उस फोकस और पोल के बिटवीन में हम कहीं पे भी पास करा सकते हैं। उस लाइट रे को फोकस और पोल के बीच में से भी पास करा सकते हैं। नहीं बेटा, रिफ्लेक्शन तो मिरर से होनी है ना। यस सर। मिरर पे तो लाइट रे लेके जानी पड़ेगी, फोकस और पोल के बीच में कैसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। सर फिर वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा साइड में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, आकृति आपके पास एनसीईआरटी की बुक है? यस सर। एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसमें ये पोजीशन देखो एक बार। बच्चे आपको मिरर पे लाइट रे लेके जानी है, उसके बाद जितने एंगल पे वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करना है। हम पोल और फोकस के बीच में उसे कैसे रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, हमें मिरर से रिफ्लेक्शन करवानी है। ठीक है, चलो देखो एक बार उसको। फिफ्थ पोजीशन, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ ऑब्जेक्ट एट फोकस। फिफ्थ पोजीशन इज ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये मेरी फिफ्थ पोजीशन है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब अच्छा, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब आपकी इमेज फोकस पे है, ठीक है ना, जब आपकी इमेज फोकस पे है, तो बच्चे आपका जो ओके इन्फिनिटी, ओके सिमरन, ओके सिमरन, आई जस्ट पास इट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दिस रेट, इन दिस। कोशिश करता हूं, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं शायद कर पाऊंगा कि नहीं, देखता हूं। ऑब्जेक्ट एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज क्या बनेगी, इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर आप ध्यान से सोचो, जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज हमारी फोकस पे थी। अब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज क्या बनेगी, इंफिनिटी पे। तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो लाइट रेज आप रिफ्लेक्ट करोगे उनको पैरेलल बनाना है। जो दो लाइट रेज आप रिफ्लेक्ट करोगे बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, तभी आपकी इमेज कहां बनेगी, तब आपकी इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। ओके, लेट मी पिक माय मिरर, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करने की कोशिश करूं। ठीक है, आई विल ट्राई टू यूज दैट सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि हम ओके आई विल जस्ट सी इफ वी कैन डू दिस। ओके, आई विल ट्राई टू कीप माय ऑब्जेक्ट एट फोकस। फोकस पे रखूंगा मैं अपना ऑब्जेक्ट, और मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे दो लाइट रेस चाहिए जो नियरली पैरेलल हो जाए। ओके, सो लेट्स से दिस इज माय फोकस, फोकस पे मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो बच्चे पहला रूल तो आपको पता ही है, टेक दी लाइट रे पैरेलल एंड देन यू विल पास इट थ्रू फोकस। फोकस से चलेगी जहां आपका ऑब्जेक्ट है। अब बच्चे आपको दूसरी इमेज, दूसरा जो आपको बनाना है वो एग्जैक्टली कैसे बनाना है, पैरेलल बनाना है। तो बच्चे मैंने यहां से यहां फोकस रखा है, तो लेट्स सी मेरा यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, लेट्स से यहां है, यहां मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब मैं क्या कोशिश करूंगा, जो मेरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ओके समथिंग लाइक दिस, ऐसे आनी चाहिए। ओके, हियर इट इज। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी बच्चे, इट शुड जस्ट टच दी पॉइंट और दी हेड ऑफ दी ऑब्जेक्ट। उसने स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट हो गए, वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ। यहां लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, यहां रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पैरेलल आई, यहां फोकस से चली गई। तो अगर आप ध्यान से देखो आपके बच्चे लाइट रे कैसे बनी है, हाउ इज योर लाइट रे बीइंग फॉर्म, ध्यान से देखिए कैसे फॉर्म हुई है आपकी लाइट रे। दे आफ्टर रिफ्लेक्शन हैव बिकम पैरेलल। ओके, आप बच्चे इसमें एक चीज और कर सकते हो। ओके जस्ट अ मिनट, व्हाट यू कैन डू, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप लाइट रे को पोल पे भी ले जा सकते हो। ओके, लेट्स से आपकी लाइट रे पोल पे गई ऐसे, और जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो देखो पैरेलल, ये भी पैरेलल बन गई। तो बच्चे एक्चुअली तो हम यहाँ तीनों शो कर पा रहे हैं। ओके, फोर्थ नहीं शो कर पाएंगे,
क्योंकि बच्चे आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो फोकस के थ्रू तो लाइट रे पास करने का कोई तरीका नहीं है बिफोर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कैन पास, बिफोर रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ तीनों रूल यूज किए हैं, ध्यान से देखिए, आई हैव यूज्ड ऑल दी 3 रूल्स। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। I'll just draw the, okay, this is the, okay, यहां मेरी इमेज, यहां मेरी लाइट रे गई है। ओके, तो बच्चे जो भी लाइट रे रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी बिकॉज लाइट रेज आर पैरेलल। हाँ जी अजीत। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर ये डायग्राम एक बार फिर से समझा दें। ओके बच्चे, इसमें क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है। ओके, फोकस से लाइट रे पैरेलल, फोकस पे है आपका ऑब्जेक्ट, तो हमने लाइट रे को पैरेलल निकाला, एक लाइट रे पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा, आप बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइट रे दिखा सकते हो। इस केस में मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यूज कर सकता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी, इट शुड जस्ट टच द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी पाथ पे वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर बच्चे हमें ध्यान क्या रखना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था जब मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा था, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हमें क्या करना है, हमें लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पे, तो मेरी इमेज कहां बननी चाहिए, इंफिनिटी पे, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गेट पैरेलल लाइट रेस। ओके, दिस इज हाउ योर इमेज इज फाउंड। ऐसे आपकी इमेज बनेगी अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है कहां है, इट इज एट फोकस हियर। मैं यहाँ एरो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, व्हाट वुड बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? सी अनेशा, इंफिनिटी में इमेज फॉर्मेशन होगी तो क्या सच में कोई विजिबल इमेज बनेगी? बच्चे इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी पे जाके देख सकते हैं। स्टार्ट ट्रैवलिंग, वी कैन गो टू इंफिनिटी। ओके, तो इंफिनिटी पे इमेज बन रही है जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो यू कैन गो एंड सी देयर, अदरवाइज मान लो कि है, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है ना, साइंस हमारे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ती। साइंस ने बोल दिया इंफिनिटी पे है इमेज, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है जाके देख लो तो इससे अच्छा क्या है, मान लो कि इंफिनिटी पे है। राइट अनेशा, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है, इंफिनिटी तक कौन जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ओके, अनिशा इज सेइंग लॉकडाउन के बाद जरूर। ओके अनिशा, आई डोंट नो हाउ मेनी लाइट ईयर्स इट विल टेक फॉर यू टू रीच इंफिनिटी, पता नहीं कितने लाइट ईयर्स लगेंगे तुम्हें इंफिनिटी पे जाने के लिए। ओके ओके, नंबर 1, image is at infinity, image is at infinity, all right, infinity पे image बन रही है। बच्चे, is it a real image? Yes, it is real image, it is real image, ये real image है, real image, and larger, या आप लिखो and is highly magnified, real image and it is highly magnified, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। प्रॉब्लम ये है हम इंफिनिटी पे नहीं जा सकते, पर बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, रियल इमेज एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी। ओके, मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। बच्चे, इस पोजीशन का हम यूज भी करते हैं, दिस पोजीशन इज आल्सो यूज प्रैक्टिकली। बच्चे, आई थिंक आपने स्टेज के ऊपर वो देखी होंगी फोकस लाइट्स, जो जब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं या डांसर्स डांस कर रहे होते हैं, उन पे फोकस लाइट मारी जाती है, बीम वाली। तो बच्चे, वहां जो लाइट रे आती है वो बिल्कुल पैरेलल बीम में आती है। वो कैसे बनती है, जो हमारा बल्ब है ना,
जो हमारा बल्ब है वो फोकस पे रखा होता है। किसके फोकस पे? जो पीछे कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है, उस फोकस लाइट का कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है और बल्ब को हम एग्जैक्टली फोकस पे रखते हैं। तो बच्चे लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल बीम की तरह निकलती है। अगर आप बच्चे कभी वेडिंग पे, रिसेप्शन पे, आउटडोर रिसेप्शन पे गए हो तो वहां वो फोकस लाइट्स यूज करते हैं डीजे वाले। तो अगर आप उनको देखो, वो लाइट को कई बार क्या करते हैं, स्काई की तरफ मारते हैं, तो आप देखोगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे निकलती है। अब बच्चे वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो इंफिनिटी तक जा रही है ना, ठीक है। आई थिंक आपने ये प्रैक्टिकली देखा भी होगा, तो हम इसे डेली लाइफ में यूज भी करते हैं इस पोजीशन को। एंड इट इज द सेम पोजीशन इन आवर हेडलाइट्स, कार की हेडलाइट्स में भी यही सेम पोजीशन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब चलेंगे बच्चे लास्ट पोजीशन, द लास्ट रे डायग्राम ऑफ द डे। ये हमारा लास्ट रे डायग्राम है। यस नव्या, इट इज लेजर तो बच्चे अलग चीज हो गई, हमें हेडलाइट या फोकस लाइट्स की बात करनी है। लेजर में तो बच्चे एक बिल्कुल पतली बीम होती है, ठीक है, वो भी कभी रुकेगी नहीं, वो तो चलती जाएगी आगे तक जब तक उसको कोई ब्लॉक ना करे। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 6th पोजीशन, इमेज एट ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब बच्चे ये वाली पोजीशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑब्जेक्ट एट फोकस। और बच्चे ये कई बार बच्चों को बनाने में हार्ड भी लगती है, पर बच्चे ये बनानी सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल राइट, आई जस्ट ओके, तो आई प्लेस माई मिरर हियर। अब मुझे यहाँ हो सकता है बहुत ज्यादा ट्वीकिंग करनी पड़े, ठीक है ना, मेरे पास स्केल नहीं है। अब आपको क्या करना है बच्चे, सॉरी ऑब्जेक्ट एट फोकस नहीं, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, मैंने भी गलत लिख दिया। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में रखना है। अब बच्चे दिस इज दी ओनली पोजीशन, this is the only position of the concave mirror where you will get a virtual image, otherwise सारी positions पे real image मिलती है, सिर्फ यही एक position है जहां virtual image मिलेगी। all right, तो यहाँ तो बच्चे कोई वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, just keep a object like this। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ओके जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, यहाँ ले जाते हैं, ओके ओके okay, let's say this is our object। अब बच्चे प्रॉब्लम इज इट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो बच्चे यहां तो आप सेफली कोई भी दो यूज कर सकते हो, ठीक है। I'll take light ray which is parallel, okay, I'll take a light ray which is parallel to principal axis and pass it through focus। तो बच्चे अब तो मेरे पास काफी जगह है, तो मैं फोकस यहां मान लेता हूं, मैं यहां मान लेता हूं अपना फोकस। दूसरा मैं लूंगा लाइट रे एट पोल, लाइट रे एट पोल जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, ओके। अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो व्हाट हैज हैपेंड, हो क्या रहा है, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर वो पैरेलल भी नहीं है आपस में, उनके बीच में स्पेस बढ़ रही है, दे आर डाइवर्जिंग आउट। तो बच्चे मिरर के सामने तो ये कभी मीट नहीं होने वाली, मैथ्स में भी हम कहते हैं पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, पर बच्चे यहाँ तो लाइट रे पैरेलल ही नहीं है, दे आर डाइवर्जिंग आउट। तो मिरर के सामने तो बच्चे इमेज बनने का कोई चांस ही नहीं है, मिरर के सामने इमेज नहीं बन पाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीट्रेस। रीट्रेस का मतलब होता है पीछे खींच के लेके जाओ, जहां से आपको लग रहा है कि वो इमेज रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो बच्चे इसको हमने रीट्रेस किया, मेरी यहाँ लाइट रे मीट हो गई, तो बच्चे आपकी जो इमेज बनेगी यहां बनेगी, जस्ट अ मोमेंट, सो यू विल गेट योर इमेज हियर, यहां जहां लाइट रे रीट्रेस होके आपको मीट हो रही है, ठीक है। I'll just draw the arrowhead, okay, this is your virtual image formed, okay, यहां मेरा ऑब्जेक्ट था और आपकी जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर के पीछे बनी है। ऑल राइट, जस्ट शो दी डायरेक्शंस ऑफ एरो, यहां लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ओके, यहां तो हम ओके ऐसे ऐसे, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बच्चे आप यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दिखा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर दिखाओगे, फोकस यहाँ है, यहाँ
ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप रिट्रेस करके अगर बनाओ तो क्या होगा, यू विल गेट दिस इमेज बिहाइंड द मिरर। ओके, सबसे पहले मुझे बताइए, इज दिस क्लियर कि हमने इमेज कैसे बनाई है? यहां लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होंगी, पैरेलल नहीं है बच्चे। अगर पैरेलल भी होती तो मिरर के सामने मिल सकती हैं, ये तो डाइवर्ज हो रही हैं, तो मिरर के सामने तो नहीं मिलेंगी। यू विल हैव टू रिट्रेस, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको स्ट्रेट पीछे रिट्रेस करो दोनों को, जहां वो मिलेंगी वहां वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड दिस इज द ओनली पोजीशन वेयर यू गेट अ वर्चुअल इमेज। ओके, तो बच्चे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए अब फटाफट, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आपको पता है ये पोजीशन कहां यूज होती है? इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर्स। छोटे छोटे गोल मिरर्स होते हैं, वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, तो बच्चे हम उनको अपने फेस के पास लेके जाते हैं तो हमारा फेस बहुत बड़ा दिखाई देता है। मेकअप मिरर कहते हैं शायद उनको, छोटा सा गोल मिरर होता है जो आई थिंक फीमेल्स अपने पर्स में रखती हैं, या शेविंग मिरर की तरह भी यूज किया जाता है। डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं आपके दांत को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। तो यहाँ जो वर्चुअल इमेज बनती है वो एक्चुअली कॉनकेव मिरर में बन रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है। हाँ जी अजीत। सर मेरा एक डाउट है सर, जब हम ग्लास की बॉटल्स में सर हम वाटर स्टोर करके रखते हैं, तो सर अगर हम उसके पास अपना हैंड लेके आएंगे तो सर हमारा हैंड बहुत बड़ा दिखता है सर। देखो बच्चे, दैट इज नॉट अ मिरर, दैट इज रिफ्रैक्शन। वो लेंस की तरह वर्क कर रहा है, वो अलग कहानी है। ओके सर, एंड वन मोर डाउट सर, लाइट सर, व्हाट इज लाइट पॉल्यूशन सर? व्हाट इज लाइट पॉल्यूशन? लाइट पॉल्यूशन, ये टर्म कहाँ पढ़ा है तुमने? किस चीज से रिलेटेड पढ़ा है? मैं सर गूगल पे देखा था सर, गूगल पे देखा था ना, वही तो है। देखो ये तो समझ ही आ रहा है ना, लाइट पोल्यूशन। व्हाट इज लाइट पोल्यूशन? समझ ही आ रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा है। अगर आप चारों तरफ देखो, जो मुझे समझ आ रही है जो आप टर्म यूज कर रहे हो, नाउअडेज हमारे आसपास जो लाइटिंग सिस्टम्स है या लाइट है बहुत ज्यादा होती है नाइट टाइम में भी। आपने कई बार सुना होगा कि अगर हम मोबाइल को रात को देखते हैं तो उससे हमारे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो मोबाइल की स्क्रीन की लाइट है अगर हम उसको रात में देख रहे हैं तो ब्रेन पे उसका असर पड़ता है। बाकी जो मुझे समझ आ रहा है कि लाइट पोल्यूशन का मतलब है जो सिटीज में लाइट है या जो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, लाइट अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उससे माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स पे शायद फर्क पड़ता होगा। आई थिंक उससे रिलेटेड ये टर्म यूज हुआ है, लाइट पोल्यूशन। ओके, क्योंकि लाइट का एक्सेसिव यूज हो रहा है ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो। स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, कार की लाइट्स हैं, तो उसकी वजह से एनिमल्स को डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपके स्लीप साइकिल्स पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आई थिंक अजीत उस रिलेशन में ये यूज हुआ होगा। ऑलराइट, चलो ओके, सो लेट्स क्विकली राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक। Let's quickly write down the characteristics of image formed by object concave mirror between F and P. तो इसमें सबसे पहले बच्चे, this is the only position where you get virtual image. So it is a virtual image. और बच्चे virtual image हमेशा reflecting surface के पीछे बनेगी। It is virtual image formed behind the mirror. Formed behind the mirror. मिरर के पीछे बन रही है। ऑलराइट, सेकेंडली व्हाट अबाउट इट्स साइज? साइज इज ओके, एंड इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज है तो इट इज अपराइट, एंड मैग्निफाइड। इमेज इज अपराइट। अपराइट का क्या मतलब है बच्चे? अपराइट या इरेक्ट, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। इमेज इज अपराइट, अपराइट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज बन रही है। इमेज इज अपराइट और इरेक्ट एंड इज हाईली मैग्निफाइड, तो बड़ी इमेज बन रही है, एंड इज मैग्निफाइड। ओके, ये डेंटिस्ट जो होते हैं इसको यूज करते हैं, इस पोजीशन को, टू सी एनलार्ज्ड व्यू ऑफ टीथ। ओके, दिस पोजीशन इज आल्सो यूज्ड इन शेविंग मिरर्स एंड मेकअप मिरर्स। ऑलराइट, तो बच्चे यहां जो है रे डायग्राम्स कंक्लूड हो गए हैं कॉनकेव मिरर्स के लिए। ओके, तो बच्चे दिस इज इट, आज हम यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चे विल बी पिकिंग अप रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है उसको देखेंगे।
ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.